السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفارے کا بیان۔ سوال: روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب: کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، لیکن ان دیشوں میں غلام نہیں ہے، اس لیے یہاں صرف دو طرح سے کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، دوسرے یہ کہ اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 فقیروں یعنی ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یا 60 مسکینوں کو فی آدمی یعنی ہر آدمی 2.25 سیر گیہوں یا ان کی قیمت یا قیمت کے برابر چاول، باجرہ، جوار دے دے۔ سیر سے انگریزی روپے سے 80 روپے کا وزن سے مطلب ہے۔ سوال: 60 مسکینوں کا اناج جیسے کہ 2 من 25 سیر گیہوں ایک مسکین کو دے دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر ایک مسکین کو ہر روز ایک دن کا اناج 2.25 سیر گیہوں دیا جائے یا اسے 60 دن تک دونوں وقت کھانا کھلا دیا جائے تو جائز ہے، لیکن اگر اسے ایک دن میں ایک دن سے زیادہ کا اناج یا قیمت دی جائے تو ایک دن کا مانا جائے گا اور ایک دن سے جتنا زیادہ دیا ہے اس کا کفارے میں شمار نہ ہوگا۔ سوال: اگر ایک مسکین کو 2.25 سیر سے کم دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، بلکہ کفارے میں ایک مسکین کو 2.25 سیر گیہوں یعنی ایک دن کے اناج کی مقدار سے کم دینا یا ایک دن میں ایک دن کی مقدار سے زیادہ دینا ناجائز ہے۔ سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ اعتکاف کا بیان۔ سوال: اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جواب: اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ آدمی خدا کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرے رہنے کو عبادت سمجھ کر اس کی نیت سے ایسی مسجد میں جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے ٹھہرا رہے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ سوال: صرف مسجد میں ٹھہرا رہنا کیوں عبادت ہے؟ جواب: جبکہ انسان اپنا سیر تماشا، چلنا پھرنا، کام کاج چھوڑ کر مسجد میں ٹھہرا رہے اور اس ٹھہرنے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہو تو اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے۔ سوال: عورت کہاں اعتکاف کرے؟ جواب: اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہو اعتکاف کی نیت کر کے اسی جگہ پر ہر وقت رہا کرے، پاخانہ پیشاب کے سوا اور کسی کام کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر مکان کے صحن یا کسی دوسرے حصے میں نہ جائے اور گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ بنا لے اور پھر اس جگہ اعتکاف کرے۔ سوال: اعتکاف کے کچھ فائدے بیان کرو۔ جواب: اعتکاف میں یہ فائدے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنے سارے بدن اور سارے وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصلی مطلب یہی ہے کہ اعتکاف کرنے والا ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور شوق میں بیٹھا رہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں اعتکاف کرنے والا ایک طرح سے فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور خدا کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 5، مسجد چونکہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے اس لیے اعتکاف میں اعتکاف کرنے والا خدا تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ سوال: اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، واجب۔ نمبر 2، سنت مؤکدہ۔ نمبر 3، مستحب۔ سوال: واجب اعتکاف کون سا ہے؟ جواب: نظر کا اعتکاف واجب ہے، جیسے کہ کسی نے منت مان لی کہ میں خدا کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یا اس طرح کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے لیے 2 دن کا اعتکاف کروں گا۔ سوال: سنت مؤکدہ کون سا اعتکاف ہے؟ جواب: رمضان شریف کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی ابتدا 20 تاریخ کی شام یعنی سورج چھپنے کے وقت سے ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے۔ سوال: مستحب کون سا اعتکاف ہے؟ جواب: واجب اور سنت مؤکدہ کے سوا سب اعتکاف مستحب ہیں اور سال کے سب دنوں میں اعتکاف جائز ہے۔ سوال: اعتکاف کے صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ جواب: نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، حد سے اکبر، اور نمبر 3، حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ نمبر 4، عاقل ہونا۔ نمبر 5، نیت کرنا۔ نمبر 6، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہو۔ یہ باتیں تو ہر قسم کے اعتکاف کے لیے شرط ہے اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔
एतिकाफ के मुस्तहब बातों का बयान। सवाल, एतिकाफ में क्या क्या बातें मुस्तहब हैं? जवाब, नंबर 1, नेक और अच्छी बातें करना। नंबर 2, कुरान शरीफ की तिलावत करना। नंबर 3, दरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 4, दीन यानी इस्लाम का इल्म पढ़ना और पढ़ाना। नंबर 5, वाज व नसीहत करना। नंबर 6, जामा मस्जिद में एतिकाफ करना। एतिकाफ के वक्तों का बयान। सवाल, कम से कम कितने वक्त का एतिकाफ होता है? जवाब, वाजिब एतिकाफ के लिए चूंकि रोजा शर्त है इसलिए इसका वक्त कम से कम 1 दिन है। बस 1 दिन से कम जैसे 2-4 घंटे या रात के एतिकाफ की मन्नत मानना ठीक नहीं। और जो एतिकाफ के सुन्नत मुअक्किदा है उसका वक्त रमजान शरीफ के आखिरी 10 दिन है और नफिल एतिकाफ के लिए वक्त की कोई मिकदार मुकर्रर नहीं, यानी नफली एतिकाफ 10-5 मिनट का भी हो सकता है। अगर मस्जिद में दाखिल होते वक्त एतिकाफ की नियत कर लिया करे तो हर रोज बहुत से एतिकाफों का सवाब मिल जाए। एतिकाफ में जो बातें जायज है उसका बयान। सवाल, एतिकाफ करने वाले को मस्जिद से निकलना किन मजबूरियों से जायज है? जवाब, नंबर 1, पाखाना पेशाब के लिए निकलना। नंबर 2, फर्ज गुस्ल के लिए निकलना। नंबर 3, जुमे की नमाज के लिए सूरज ढलने के वक्त या इतनी देर पहले निकलना कि जामा मस्जिद पहुंचकर खुतबे से पहले 4 सुन्नतें पढ़ सके। नंबर 4, अजान कहने के लिए अजान की जगह पर मस्जिद की हद से अलग जाना। सवाल, पाखाना पेशाब के लिए कितनी दूर जाना जायज है? जवाब, अपने मकान तक जाना चाहे वह कितनी ही दूर हो जायज है। हाँ, अगर उसके 2 मकान हैं, एक एतिकाफ की जगह से करीब है और दूसरा दूर है तो करीब वाले में जाना जरूरी है। सवाल, जनाजे की नमाज के लिए एतिकाफ करने वाले को मस्जिद से निकलना जायज है या नहीं? जवाब, अगर उसने एतिकाफ की नियत करते वक्त यह नियत कर ली थी कि जनाजे की नमाज के लिए जाऊंगा तो जायज है और नियत नहीं की थी तो जायज नहीं। सवाल, और क्या क्या बातें एतिकाफ में जायज है? जवाब, मस्जिद में खाना पीना सोना, कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदना, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह मस्जिद में न हो, और निकाह करना जायज है। एतिकाफ को तोड़ने वाली और मकरूह बातों का बयान। सवाल, एतिकाफ में क्या क्या बातें मकरूह है? जवाब, नंबर 1, बिल्कुल खामोश रहना और इसे इबादत समझना। नंबर 2, सामान मस्जिद में लाकर बेचना या खरीदना। नंबर 3, लड़ाई झगड़ा या बेहुदा बातें करना। सवाल, किन चीज़ों से एतिकाफ टूट जाता है? जवाब, नंबर 1, बिना मजबूरी जानबूझकर या भूले से मस्जिद से बाहर निकलना। नंबर 2, एतिकाफ की हालत में सोहबत करना। नंबर 3, किसी मजबूरी से बाहर निकलकर ज़रूरत से ज़्यादा ठहरना, जैसे पाखाने के लिए गया और पाखाने से फारिग होकर भी घर में कुछ देर ठहरा रहा। नंबर 4, बीमारी या डर की वजह से मस्जिद से निकलना। इन सब सूरतों में एतिकाफ टूट जाता है। सवाल, एतिकाफ टूट जाए तो उसकी कज़ा वाजिब है या नहीं? जवाब, वाजिब एतिकाफ की कज़ा वाजिब है, सुन्नत और नफिल की कज़ा वाजिब नहीं। नजर यानी मन्नत मानने का बयान। सवाल, मन्नत मानना कैसा है? जवाब, जायज है और मन्नत मान कर उसका पूरा करना वाजिब है। सवाल, क्या हर मन्नत का पूरा करना वाजिब है? जवाब, जो मन्नत शरीयत के खिलाफ वाली बात की न हो और उसकी शर्तें पाई जाएं उसका पूरा करना वाजिब है, और जो मन्नत शरीयत के खिलाफ काम की हो उसका पूरा करना नाजायज है। सवाल, मन्नत सही होने की शर्तें क्या है? जवाब, नंबर 1, मन्नत किसी इबादत की हो, जैसे मेरा फला काम हो गया तो खुदा के लिए 2 रकात नमाज पढ़ूंगा या रोजा रखूंगा या इतने मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगा या 1000 रुपया सदका करूंगा। नंबर 2, जिस चीज की मन्नत मानी है वह उसके बस से बाहर न हो, नहीं तो मन्नत सही न होगी। जैसे कोई आदमी कहे कि मेरा फला काम हो गया तो फला आदमी की दुकान का माल खैरात करूंगा, यह मन्नत सही नहीं, क्योंकि गैर की दुकान का माल उसकी मिल्कियत नहीं और उसके बस के बाहर है। इसके अलावा और भी शर्तें हैं जो बड़ी किताबों में तुम पढ़ोगे। सवाल, किसी पीर या वली की मन्नत माननी कैसी है? जवाब, खुदा ताला के सिवा किसी और की मन्नत माननी हराम है, क्योंकि मन्नत भी एक तरह की इबादत है और इबादत का खुदा ताला के सिवा और कोई मुस्तहिक नहीं। इस्लामी फर्जों में से ज़कात का बयान। सवाल, ज़कात किसे कहते हैं? जवाब, माल के उस खास हिस्से को ज़कात कहते हैं जिसको खुदा के हुक्म के मुवाफिक फ़कीरों मोहताजों वगैरह को देकर उन्हें मालिक बना दिया जाए। यूँ समझो कि नमाज रोजा बदन की इबादत है और ज़कात माल की इबादत है। सवाल, ज़कात देना फ़र्ज
है या वाजिब? जवाब, ज़कात देना फ़र्ज है। कुरान मजीद की आयतों और हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से इसका फ़र्ज होना साबित है। जो आदमी ज़कात फ़र्ज होने का इनकार करे वह काफिर है। सवाल, ज़कात फ़र्ज होने की कितनी शर्तें हैं? जवाब, नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आज़ाद होना, नंबर 3 आकिल होना, नंबर 4 बालिग होना, नंबर 5 निसाब का मालिक होना, नंबर 6 निसाब का अपनी असली ज़रूरतों से ज़्यादा और कर्ज से बचा हुआ होना, और नंबर 7 मालिक होने के बाद निसाब पर 1 साल गुजर जाना ज़कात फ़र्ज होने की शर्त है। बस काफिर, गुलाम, पागल और नाबालिग के माल में ज़कात फ़र्ज नहीं। इसी तरह जिसके पास निसाब से कम माल हो, या माल तो निसाब के बराबर है लेकिन वह कर्जदार भी है, या माल साल भर तक बाकी नहीं रहा, तो इन हालतों में भी ज़कात फ़र्ज नहीं। ज़कात का माल और निसाब का बयान। सवाल, किस किस माल में ज़कात फ़र्ज है? जवाब, चांदी, सोने और हर तरह के तिजारत के माल में ज़कात फ़र्ज है। सवाल, चांदी, सोने से उनके सिक्के जैसे अशरफियाँ, रुपए से मतलब है या कुछ और? जवाब, चांदी, सोने की सब चीज़ों में ज़कात फ़र्ज है, जैसे अशरफियाँ, रुपए, जेवर, बर्तन, गोटा, ठप्पा वगैरह। सवाल, जवाहरात पर ज़कात फ़र्ज है या नहीं? जवाब, जवाहरात अगर तिजारत के लिए हों तो ज़कात फ़र्ज है, और अगर तिजारत के लिए न हो तो ज़कात फ़र्ज नहीं, चाहे कितनी ही लागत के हों। इस तरह अगर किसी आदमी के पास तांबे वगैरह के बर्तन निसाब से ज़्यादा कीमत की हों, या कोई मकान या दुकान वगैरह निसाब से ज़्यादा कीमत के हो और उसका किराया भी आता हो, या चांदी, सोने के सिवा और किसी तरह का सामान और असबाब है लेकिन ये सारी चीज़ें तिजारत के लिए नहीं हैं, तो इनमें से किसी पर ज़कात फ़र्ज नहीं। सवाल, सरकारी नोट अगर किसी के पास निसाब के बराबर हो तो क्या हुक्म है? जवाब, उस पर ज़कात फ़र्ज है। सवाल, अगर किसी के पास थोड़ी सी चांदी और थोड़ा सा सोना है, दोनों में से निसाब किसी का पूरा नहीं होता, तो उस पर ज़कात फ़र्ज है या नहीं? जवाब, इस सूरत में सोने की कीमत चांदी से या चांदी की कीमत सोने से लगाकर देखो कि दोनों में से किसी का निसाब पूरा होता है या नहीं। अगर किसी का निसाब पूरा हो जाए तो उसके हिसाब से ज़कात दो, और दोनों में से किसी का निसाब पूरा न हो तो ज़कात फ़र्ज नहीं। सवाल, अगर किसी के पास सिर्फ 3-4 तोला सोना है और उसकी कीमत चांदी के हिसाब के बराबर या ज़्यादा है, लेकिन चांदी की और कोई चीज़ उसके पास नहीं है, न रुपया है न जेवर वगैरह, तो उस पर ज़कात फ़र्ज है या नहीं? जवाब, इस सूरत में उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं। सवाल, तिजारत के माल से क्या मतलब है? जवाब, जो माल की बेचने और नफ़ा कमाने के लिए हो वह तिजारत का माल है, चाहे किसी किस्म का माल हो, जैसे अनाज, कपड़ा, कंद, जूतियाँ, बिसात, खाने का सामान वगैरह। सवाल, निसाब किसे कहते हैं? जवाब, जिन मालों में ज़कात फ़र्ज है शरीयत ने उनकी खास मिकदार मुकर्रर कर दी है। जब इतनी मिकदार किसी के पास पूरी हो जाए तब ज़कात फ़र्ज होती है। इस मिकदार को निसाब कहते हैं। सवाल, चांदी का निसाब क्या है? जवाब, चांदी का निसाब 54 तोले 2 माह से भर वजन की चांदी है। तोले से अंग्रेजी रुपए के वजन से मतलब है, जबकि बहुत से आलिमों ने 52.5 तोला चांदी भी बताया है। इसके अलावा आप उलमाए कराम से इस मसले को पूछ सकते हैं। सवाल, 54 तोले 2 माह से चांदी की ज़कात कितनी हुई? जवाब, ज़कात में 40वां हिस्सा देना फ़र्ज होता है। बस 54 तोले 2 मासे की ज़कात 1 तोला 4 माशा 2 रत्ती चांदी हुई। सवाल, सोने का निसाब क्या है? जवाब, सोने का निसाब 7 तोले 8.5 मासे सोना है, यानी 7.5 तोला सोना है। इसकी ज़कात 2 माह से 2.5 रत्ती सोना हुई। सवाल, तिजारती माल का निसाब क्या है? जवाब, तिजारती माल की सोने या चांदी से कीमत लगाओ, फिर चांदी या सोने का निसाब कायम करके उसके हिसाब से ज़कात अदा करो। ज़कात अदा करने का बयान। सवाल, ज़कात अदा करने का सही तरीका क्या है? जवाब, जितनी ज़कात वाजिब हुई है वह किसी मुस्तहिक को खास खुदा के लिए दे दो और उससे मालिक बना दो। किसी खिदमत या किसी काम की उजरत में ज़कात देना जायज़ नहीं, लेकिन जो आदमी ज़कात वसूल करने पर मुकर्रर होता है उसकी तनख्वाह ज़कात के माल में से देना जायज़ है। हाँ, अगर ज़कात के माल से फ़कीरों के लिए कोई चीज़ खरीद कर उनको बांट दो तो जायज़ है। सवाल, ज़कात कब अदा करनी चाहिए? जवाब, जबकि निसाब के माल पर चांद के हिसाब से साल पूरा हो जाए तो फ़ौरन ज़कात अदा करना चाहिए, देर लगाना अच्छा नहीं। सवाल, साल गुजरने से पहले अगर कोई आदमी ज़कात दे दे तो जायज़ है या नहीं? जवाब, निसाब पूरा होने पर निसाब का मालिक साल गुजर
गुजरने से पहले ज़कात अदा कर दे तो जायज़ है। सवाल, ज़कात देते वक्त नियत भी करनी ज़रूरी है या नहीं? जवाब, हाँ, ज़कात देते वक्त या कम से कम ज़कात का माल निकाल कर अलग रखने के वक्त यह नियत करनी ज़रूरी है कि यह माल मैं ज़कात में देता हूँ या ज़कात के लिए अलग करता हूँ। अगर ज़कात का ख्याल किए बिना किसी को रुपया दे दिया और देने के बाद उसको ज़कात के हिसाब में लगा लिया तो ज़कात अदा न होगी। सवाल, जिसको ज़कात दी जाए उसको यह बता देना कि यह माल ज़कात का है ज़रूरी है या नहीं? जवाब, यह ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर इनाम के नाम से या किसी गरीब के बच्चों को ईदी के नाम से दे दो जब भी ज़कात अदा हो जाएगी। सवाल, अगर साल गुजरने के बाद अभी ज़कात नहीं दी थी कि सारा माल बर्बाद हो गया तो क्या हुक्म है? जवाब, उसकी ज़कात भी उसके जिम्मे से उतर गई। सवाल, साल गुजरने के बाद अगर सारा माल खुदा की राह में दे दिया तो क्या हुक्म है? जवाब, उसकी ज़कात भी माफ़ हो गई। सवाल, अगर साल गुजरने के बाद थोड़ा माल बर्बाद हो गया या खैरात कर दिया तो क्या हुक्म है? जवाब, जितना माल बर्बाद हुआ या खैरात किया उसकी ज़कात भी ख़त्म हो गई, बाकी माल की ज़कात अदा करें। सवाल, अगर चांदी की ज़कात चांदी से अदा करे तो वजन का एतबार है या कीमत का? जवाब, वजन का एतबार है। जैसे कि किसी के पास 100 रुपए हैं, साल गुजरने के बाद उसे 2.5 तोला चांदी देनी चाहिए। अब उसे इख्तियार है कि वह 2 रुपए और 1 अठन्नी दे दे या चांदी का टुकड़ा 2.5 तोले का दे दे तो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर चांदी का टुकड़ा 2.5 तोले का कीमत में 2 रुपए का हो तो 2 रुपए देने से ज़कात अदा न होगी। सवाल, चांदी की ज़कात वाजिब हुई तो कोई दूसरी चीज भी ज़कात में दी जा सकती है या नहीं? जवाब, हाँ, जितनी चांदी ज़कात में वाजिब होती है उतनी ही चांदी की कीमत की कोई दूसरी चीज जैसे कपड़ा या अनाज खरीद कर देना भी ठीक है। ज़कात के मसारिफ का बयान। सवाल, ज़कात के मसारिफ से क्या मतलब है? जवाब, जिस शख्स को ज़कात देने की इजाज़त है उसे ज़कात का मसरफ कहते हैं। मसारिफ मशरफ की जमा है। ज़कात के मसारिफ से उन लोगों से मतलब है जिनको ज़कात देना जायज़ है। सवाल, ज़कात के मसारिफ कितने और कौन कौन हैं? जवाब, इस ज़माने में ज़कात के मसारिफ ये हैं। नंबर 1, फ़कीर, यानी वह आदमी जिसके पास कुछ थोड़ा माल और असबाब है लेकिन निसाब के बराबर नहीं। नंबर 2, मिस्कीन, यानी वह आदमी जिसके पास कुछ नहीं। नंबर 3, कर्जदार, यानी वह आदमी जिसके जिम्मे लोगों का कर्ज हो और उसके पास कर्ज से बचा हुआ निसाब के बराबर कोई माल न हो। नंबर 4, मुसाफिर, जो सफ़र की हालत में तंगदस्त हो गया हो, उसे ज़रूरत के लायक ज़कात दे देना जायज़ है। सवाल, इस्लामी मदरसों में ज़कात का माल देना जायज़ है या नहीं? जवाब, हाँ, तालिब इल्मों को ज़कात का माल देना जायज़ है और मदरसों के मुहतमीमों को इसके लिए कि वे तालिब इल्मों पर खर्च करें देने में कुछ हर्ज नहीं। सवाल, किन लोगों को ज़कात देना नाजायज़ है? जवाब, इतने लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं। नंबर 1, मालदार, यानी वह आदमी जिस पर खुद ज़कात फ़र्ज है या निसाब के बराबर कीमत का कोई और माल मौजूद हो और उसकी असली ज़रूरत से ज़्यादा हो। जैसे कि किसी के पास तांबे के बर्तन रोज़ाना की ज़रूरत से ज़्यादा रखे हुए हैं और उसकी कीमत निसाब के बराबर है, उसको ज़कात का माल लेना हलाल नहीं, अगरचे खुद उस पर भी उन बर्तनों की ज़कात देनी वाजिब नहीं। नंबर 2, सैयद और बनी हाशिम, बनी हाशिम से हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से मतलब है। नंबर 3, अपने बाप, माँ, दादा, दादी, नाना, नानी, चाहे और ऊपर के हों। नंबर 4, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, चाहे और नीचे के हों। नंबर 5, खाविंद अपनी बीवी को और बीवी अपने खाविंद को भी ज़कात नहीं दे सकती। नंबर 6, काफिर। नंबर 7, मालदार आदमी की नाबालिग औलाद। इन सब लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं। सवाल, किन कामों में ज़कात का माल खर्च करना जायज़ नहीं है? जवाब, जिन चीज़ों में कोई मुस्तहिक मालिक न बनाया जाए उनमें ज़कात का माल खर्च करना जायज़ नहीं। जैसे मैयत के गोर कफन में लगा देना या मैयत का कर्ज अदा करना या मस्जिद की तामीर या फर्श या लोटों या पानी वगैरह में खर्च करना जायज़ नहीं। सवाल, किसी आदमी के पास 1-2 हज़ार रुपए का मकान है जिसमें वह रहता है या उसके किराए से अपनी गुजर करता है, इसके अलावा उसके पास कोई माल नहीं बल्कि तंगदस्त है, उसे ज़कात देना जायज़ है या नहीं? जवाब, जायज़ है, क्योंकि यह मकान उसकी असली ज़रूरत में
दाखिल है। हाँ, जब किसी के पास उसकी असली ज़रूरत से कोई माल ज़्यादा हो और वह निसाब के बराबर हो तो उसे ज़कात लेना जायज़ नहीं। सवाल, अगर किसी आदमी को मुस्तहिक समझकर ज़कात दे दी, बाद में मालूम हुआ कि वह सैयद था या मालदार था या अपना बाप या माँ या औलाद में से कोई था, तो ज़कात अदा हुई या नहीं? जवाब, अदा हो गई, फिर से देना वाजिब नहीं। सवाल, ज़कात किन लोगों को देना ज़्यादा अच्छा है? जवाब, पहले अपने रिश्तेदारों जैसे भाई, बहन, भतीजे, भतीजियाँ, भांजे, भांजियाँ, चचा, फूफी, खाला, मामू, सास, ससुर, दामाद वगैरह में जो ज़रूरतमंद और हकदार हों उन्हें देने में बहुत ज़्यादा सवाब है। इनके बाद अपने पड़ोसियों या अपने शहर के लोगों में से जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हो उसे देना ज़्यादा अच्छा है। फिर जिसे देने में दीन का नफ़ा ज़्यादा हो, जैसे दीन की तालीम पाने वाले, उनको देना ज़्यादा अच्छा है। सदका फितर का बयान। सवाल, सदका फितर किसे कहते हैं? जवाब, फितर के माने रोज़ा खोलने या रोज़ा न रखने के हैं। खुदा ताला ने अपने बंदों पर एक सदका मुकर्रर फरमाया है कि रमज़ान शरीफ के ख़त्म होने पर रोज़ा खुल जाने की खुशी और शुक्रिया के लिए अदा करें, उसे सदका फितर कहते हैं। और इसी रोज़ा खुलने की खुशी मनाने का दिन होने की वजह से रमज़ान शरीफ के बाद वाली ईद को ईद उल फितर कहते हैं। सवाल, सदका फितर किस आदमी पर वाजिब होता है? जवाब, हर मुसलमान आजाद पर, जबकि वह निसाब के बराबर माल का मालिक हो, सदका फितर वाजिब है। सवाल, सदका फितर वाजिब होने के लिए जो निसाब शर्त है वह वही ज़कात का निसाब है जो बयान हो चुका या कुछ फर्क है? जवाब, ज़कात के निसाब और सदका फितर के निसाब की मिकदार तो एक ही है, जैसे 54 तोला 2 माशा चांदी या उसकी कीमत। लेकिन ज़कात के निसाब और सदका फितर के निसाब में यह फ़र्क है कि ज़कात फ़र्ज होने के लिए जो चांदी या सोना या तिजारत का माल होना जरूरी है, उसका सदका फितर वाजिब होने के लिए इन तीनों चीज़ों की खुसूसियत नहीं, बल्कि उसके निसाब में हर किस्म का माल हिसाब में ले लिया जाता है। हाँ, असली ज़रूरत से ज़्यादा और कर्ज से बचा हुआ होना दोनों निसाबों में शर्त है। बस अगर किसी आदमी के पास उसके इस्तेमाल के कपड़ों से ज़्यादा कपड़े रखे हुए हों या रोज़ाना की ज़रूरत से ज़्यादा तांबे, पीतल, चीनी वगैरह के बर्तन रखे हों या कोई मकान उसका खाली पड़ा है और किसी किस्म का सामान और असबाब है और उसकी असली ज़रूरत से ज़्यादा है और उन चीज़ों की कीमत निसाब के बराबर या ज़्यादा है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं, लेकिन सदका फितर वाजिब है। सदका फितर के निसाब पर साल गुजरना भी शर्त नहीं, बल्कि उसी दिन निसाब का मालिक हुआ हो तो भी सदका फितर अदा करना वाजिब है। सवाल, सदका फितर किस किस की तरफ से देना वाजिब है? जवाब, हर निसाब के मालिक पर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फितर देना वाजिब है, लेकिन नाबालिगों का अगर अपना माल हो तो उनके माल में से अदा करे। सवाल, मशहूर है कि जिसने रोजे नहीं रखे उस पर सदका फितर वाजिब नहीं, यह सही है या गलत? जवाब, गलत है, बल्कि हर निसाब के मालिक पर वाजिब है, चाहे रोजे रखे हों या न रखे हों। सवाल, सदका फितर वाजिब होने का वक्त क्या है? जवाब, ईद के दिन सुबह सादिक होते ही यह सदका वाजिब हो जाता है। बस जो आदमी सुबह सादिक से पहले मर गया उसके माल में से सदका फितर नहीं दिया जाएगा और जो बच्चा सुबह सादिक से पहले पैदा हुआ उसकी तरफ से अदा किया जाएगा। सवाल, अगर सदका फितर ईद के दिन से पहले रमजान शरीफ में दे दे तो जायज है या नहीं? जवाब, जायज है। सवाल, सदका फितर अदा करने का ज़्यादा अच्छा वक्त क्या है? जवाब, ईद के दिन ईद की नमाज को जाने से पहले अदा करना ज़्यादा अच्छा है और नमाज के बाद करे तो यह भी जायज है, और जब तक अदा न करे उसके जिम्मे अदा करना वाजिब रहेगा, चाहे कितनी ही मुद्दत गुजर जाए। सवाल, सदका फितर में क्या क्या चीज़ और कितना देना वाजिब है? जवाब, सदका फितर में हर किस्म का अनाज और कीमत देना जायज है। इसकी तफसील यह है कि अगर गेहूँ या उसका आटा या सत्तू दे तो एक आदमी को 2.25 सेर देना चाहिए। सेर से मतलब अंग्रेजी रुपए से 80 रुपए का वजन है। और जौ या उसका आटा या सत्तू दें तो 3.5 सेर देना चाहिए। और अगर जौ और गेहूं के अलावा और कोई अनाज जैसे चावल, बाजरा, ज्वार वगैरह दें तो 2.25 सेर गेहूं की कीमत या 3.5 सेर जौ की कीमत में जितना वह अनाज आता हो इतना देना चाहिए। और अगर कीमत दें तो 2.25 सेर गेहूं या 3.5 सेर जौ की कीमत देनी चाहिए। सवाल, एक आदमी का सदका फितर
एक ही फ़कीर को दे देना या थोड़ा थोड़ा कई फ़कीरों को देना भी जायज़ है? जवाब, कई फ़कीरों को भी देना जायज़ है। इसी तरह कई आदमियों का सदका फ़ितर एक फ़कीर को भी देना जायज़ है। सवाल, सदका फ़ितर किन लोगों को देना चाहिए? जवाब, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है उन्हें सदका फ़ितर भी देना जायज़ है, और जिन लोगों को ज़कात देना नाजायज़ है उन्हें सदका फ़ितर देना भी नाजायज़ है। सवाल, जिन लोगों पर सदका फ़ितर वाजिब है वे ज़कात या सदका फ़ितर ले सकते हैं या नहीं? जवाब, नहीं ले सकते, और कोई फ़र्ज या वाजिब सदका ऐसे लोगों को लेना जायज़ नहीं जिनके पास सदका फ़ितर का निसाब मौजूद हो। तालीमुल इस्लाम का चौथा हिस्सा ख़त्म हुआ। पढ़ने, सुनने और समझने में जो भी गलतियाँ हुई हो अल्लाह उससे माफ़ करके कबूल करे। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए तो वे किसी आलिम से उसके बारे में पूछ ले। अल्लाह ताला हम सबको दीन का इल्म सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।